Good morning, student. Welcome in your science class. So today I am going to start the 6th chapter of your science book, and the chapter's name is Our Body and its System. So, without wasting time, let's start. In this chapter, we will learn the different body parts in our body and its function. Okay? So, our body is made up of very tiny cells, and the cells together form a tissue. Then tissue again together form an organ. An organ is a body part which performs a specific functions. So till date we are know about the organs: ears, eyes, nose, skin, tongue. These all are called organs, right? And we are knowing about it. But today you will learn something new. Yes, our body is made up of very tiny cells. So cells is the smallest organ in our body. Okay? Now these tiny cells together form a tissue. सबसे छोटा वाला जो कोष होती है हम लोग की बॉडी के अंदर वो होती है सेल, और बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ के देयर आर सो मेनी सेल्स टुगेदर फॉर्म आर टिश्यू. बहुत सारे सेल एक साथ जुड़ के बनाते हैं टिश्यू को. देन सम टिश्यूज टुगेदर मेड एन ऑर्गन. अब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ जुड़ के बनाते हैं किसको? ऑर्गन को. एंड organ is a body part which performs a specific function. Suppose as an example we can say that we work with our hands, we work and run with our legs, we smell with our nose. That means the specific body organs doing the specific function in our body, right? Now there are many organs in our body which work together to perform one task. So now we are telling that the ear help us to see, ears help us to hear. That means in that case the one particular body organ doing a specific one function only. But sometimes there are so many body organs in our body perform only one work. So this kind of work is known as a system. अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि एक एक बॉडी ऑर्गन एक एक काम करते हैं, लेकिन हम लोग की बॉडी में ऐसे बहुत सारा ऑर्गन्स है जो कि एक साथ मिलके एक ही काम करते हैं, और इसको कहते हैं सिस्टम. ओके, सो इन एनी पर्पस व्हेन द सम ऑर्गन्स टुगेदर फॉर्म one system, and in that case they are doing only one function in our body. This is known as a system. Okay, and there are many system present in our body. ऐसे बहुत सारे system हम लोग की body के अंदर present है. So now we will learn about this system. First is the skeletal system, then muscular system, digestive system, circulatory system, respiratory system, and the last the nervous system. So there are so many important systems present in our body, and for one system there are so many body organs together and doing only one function in our body. So first we are discuss about the skeletal system in our body. Now which organs together made this system? Yes, bones and muscles. Bones and muscles together make a skeletal system. Now what is the function of this system?
It support to shape our body, help us to stand upright and protects delicate organ. So the skeletal system is give us a shape and it also help us to stand erect और स्टैंड स्ट्रेट. मतलब जो स्केलेटल सिस्टम है उसके वजह से हम लोग की बॉडी को शेप मिलते हैं. मतलब कोई कोई इंसान देखो लंबे होती है, कोई इंसान शॉर्ट हाइट होती है, कोई थोड़ा सा फैट होती है, थोड़ा सा कोई पतला होती है. तो ये जो भी बॉडी शेप है ये किसके कारण से होती है? ड्यू टू द स्केलेटल सिस्टम. स्केलेटल सिस्टम और मसल्स की हेल्प से हम लोग की बॉडी को शेप मिलते हैं. और क्या करते हैं स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट. हम लोग जो सीधा खड़े रहते हैं इसमें भी हम लोग की स्केलेटल सिस्टम हम लोग को हेल्प करते हैं. और इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन. मतलब इनसाइड आवर बॉडी देयर आर सो मेनी डेलिकेट ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. सपोज एज एग्जाम्पल लंग्स, हार्ट, ब्रेन, skull, these all are delicate organ present in our body. And these delicate organs are protected by our skeletal system because the skeletal system is made up with the bones and bone is a very hard structure. जो bones होती है बहुत ही hard होती है, मजबूत सख्त रहती है, मजबूत रहती है. इसीलिए ये bones अंदर की जो भी नाजुक वाला पार्ट होती है हम लोग की बॉडी के उस सारी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके. नाउ सेकेंड सिस्टम इज द मस्कुलर सिस्टम and the muscular system is made with the muscles. मस्कुलर सिस्टम किससे बनते हैं? मसल्स से, जो कि हम लोग कहते हैं मांसपेशी. ओके. एंड इट हेल्प अस टू मूव. हम लोग जो भी मूवमेंट करते हैं जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, जो भी हम लोग की बॉडी का मूवमेंट होती है ड्यू टू दिस मस्कुलर सिस्टम. नेक्स्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड विच ऑर्गन्स मेक दिस सिस्टम? Yes, mouth, food pipe, stomach, intestine and anus. This all body organs made together and form this digestive system. Now what is the importance of digestive system in our body? Digestive system की क्या महत्व है हम लोग की बॉडी में? Because it help us to digestion of our food. डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो हम लोग की खाने को हजम करने में, डाइजेशन होने में हेल्प करते हैं. बिकॉज जब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छी तरह से तो खाने से हम लोग को कोई एनर्जी नहीं मिलेगा. अनटिल द फूड इज डाइजेशन इज प्रॉपर वे, दैट टाइम वी आर नॉट गेट द प्रॉपर एनर्जी फ्रॉम आवर फूड और वी ऑल्सो नॉट गेट द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. सो डाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ. Right? Now, the next is the circulatory system. Heart, blood vessels is make the circulatory system. Circulatory system कौन सा बॉडी ऑर्गन से बनते हैं? Yes, heart और blood vessels. And what is the function of this system? Blood circulates oxygen and digested food to our organs. जो blood होती है वो the blood is flow throughout in our body. हम लोग की बॉडी की सारे पार्ट में ब्लड फ्लो होती है और ब्लड के साथ साथ जो ऑक्सीजन्स होती है वो भी हम लोग की सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचती है और खाने से जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट्स वो भी थ्रू द ब्लड द ऑल बॉडी पार्ट्स गेट. सारे बॉडी पार्ट्स को वो मिलते हैं. ठीक है. तो ब्लड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी. Now, the respiratory system. Nose, windpipe and lungs together form a respiratory system. Respiratory system का मतलब होती है सांस क्रिया, जिस प्रोसेस में हम लोग अपनी सांस क्रिया को कंप्लीट करते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. और इस प्रोसेस में कौन सा बॉडी ऑर्गन हेल्प करती है? यस, नोज एंड विंड पाइप और लंग्स. ओके. नाउ
वाई द सिस्टम इज़ हेल्पफुल इन आवर बॉडी, ये सिस्टम किस लिए ज़रूरी है? बिकॉज इट हेल्प अस टू ब्रीथ, ये हम लोगों को सांस लेने में हेल्प करते हैं. नाउ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम कौन सा बॉडी ऑर्गन से बनते हैं? नर्व्स एंड ब्रेन टुगेदर फॉर्म द नर्वस सिस्टम. One more body organ is included in this system. There is not mentioned in here. That is spinal cord. So there are three main body organs together form the nervous system. One is nerve, then brain, and another one is spinal cord. These three body organs together form our nervous system. So this all system are very important for our body, because this all system control the all important function in our body, right? Now in the next we are discuss one by one this system. Okay, so first we are learn elaborately or briefly about the skeletal system. अब हम लोग skeletal system के बारे में अच्छे से जानेंगे. So bones are found in every part of our body. जो bones होती है, मतलब bones की मतलब होती है हड्डी. bones মানে হচ্ছে হাড়. তো bones আমাদের শরীরে সব জায়গাতেই আমাদের bones থাকে, হাড় থাকে, हड्डी रहती है. such as head, chest, legs and arms. मतलब सर से लेकर पाँव तक सारे बॉडी पार्ट्स में हम लोग की बोन्स रहती है, हड्डी रहती है. नाउ द बोन्स इन आवर बॉडी आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. अब अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जो अलग अलग बोन्स रहती है उसकी शेप्स और साइज अलग अलग होती है. ये तो बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग साइज की होती है हम लोग की बॉडी में. तो पैर जो होती है वो थोड़ा लंबा होती है, जो हाथ होती है वो थोड़ा छोटी होती है. तो जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स की लेंथ होगा, जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स का शेप होगा, उसी हिसाब से उसके अंदर बोन्स का भी शेप और साइज डिपेंड करती है. ओके, नाउ सम आर लॉन्ग, रेस्ट आर शॉर्ट. मतलब कोई कोई लंबाई होती है और बाकी का छोटे होते हैं. whereas some are curved. कर्व्ड मतलब कोई कोई बोन्स थोड़ा सा घुमा हुआ रहते. कर्व्ड का मतलब घुमा हुआ थोड़ा सा, माने गोल करे बाकानो থাকে. एंड रेस्ट द स्ट्रेट, और बाकी कोई कोई रहता है स्ट्रेट, एकदम सीधा. ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी टुगेदर फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम. सारे बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़ के ये स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं. सी दिस पिक्चर. This is the skeletal system. So in this system, this structure, there are so many bones are present, and the different bones to connect to each other with the muscles and joint. ये सारे सिस्टम में जो बोन्स है, एक एक बोन्स एक दूसरे के साथ जॉइंट के साथ जुड़ा रहते हैं. ठीक है. नाउ हाउ डज इट हेल्प अस. अब ये स्केलेटल सिस्टम कैसे हेल्प करते हैं? द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स आवर बॉडी. अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं रहता तो हम लोग की बॉडी की कोई शेप ही नहीं रहता है. ठीक है. तो जो हम लोग की बॉडी का जो शेप्स है, जो स्ट्रक्चर है, वो कौन देता है? स्केलेटल सिस्टम. नाउ इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी. इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट डेलिकेट ऑर्गन इनसाइड आवर बॉडी. जो कि मैंने पहले ही तुम लोग को बता दिया कि जो स्केलेटल सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारा नाजुक बॉडी पार्ट रहते हैं हम लोग की बॉडी का, जैसे कि हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनी, लिवर. ये सारे जो बॉडी ऑर्गन से होती है ये बहुत ही डेलिकेट, मतलब डेलिकेट का मतलब होती है बहुत नाजुक, খুবই সেন্সিটিভ হয়. তো এই যে অঙ্গগুলো, শরীরের এই বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলো যেগুলো বাইরে থেকে কে প্রোটেক্ট করে? স্কেলেটাল সিস্টেম, जिसको
स्केलेटल सिस्टम बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ द स्कल, जो हेड का जो हम लोग की सर पे जो स्केलेटन रहते हैं उसको कहते हैं स्कल। द स्कल प्रोटेक्ट द डेलिकेट ब्रेन। अब सर पे हम लोग का ब्रेन रहते, আমাদের মাথায় আমাদের ব্রেন থাকে, তো সেই যে ব্রেনটা কিন্তু খুব একটা সেন্সিটিভ ডেলিকেট একটা অর্গান, और এটা একটা খুব इम्पॉर्टेंट ऑर्गन। कारण कि हमारे ब्रेन, क्योंकि जो हम लोग की ब्रेन होती है वो सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। आवर ब्रेन कंट्रोल्स द ऑल अदर different parts in our body. So brain is the most complex and as well as the delicate organ in our body, and it protects by the skull। और ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करते हैं? स्कल। नाउ द बोन्स of the rib cage are curved. See this picture, this portion is rib cage, and see this picture very clearly that ये जो रिब केज का जो बोन्स होती है, देखो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा घुमा हुआ है, कर्व है, ऐसे रिंग है। ये रिब केज को जो बोन्स होती है वो रहती है, मतलब हम लोग की छाती पे जो बोन्स रहती है वो थोड़ा सा घुमा रहती है, कर्व शेप का रहती है। The bones of the rib cage are curved. They protect the lungs and heart. मतलब हम लोग की छाती पे रहती है लंग्स और हार्ट, वो दोनों ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक एक बॉडी पार्ट है जिसको बाहर से ये जो रिब केज, मतलब चेस्ट में जो छाती में जो बोन्स रहती है उसको कहती है रिब केज, उसको वो प्रोटेक्ट करती है। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द बोन्स। बोन्स किसको कहते हैं? बोन्स आर स्टीफ एंड हार्ड। जो बोन्स होती है बहुत ही स्टीफ होती है और हार्ड होती है, मतलब मजबूत होती है। और स्टीफ किसको कहते हैं? जो एकदम स्ट्रेट रहती है, मतलब जो अपने मर्जी से मूवमेंट नहीं कर पाते उसको कहते हैं स्टीफ। इट कैन नॉट बेंड, ये कभी भी बेंड नहीं होता है, मतलब एक बोन्स को तुम अपने मर्जी से मोड़ नहीं सकते, उसको कर्व नहीं कर सकते, उसको बेंड नहीं, झुका नहीं सकते हो, तो उसको कहते हैं स्टीफ। Now joint help us to bend our body parts। लेकिन हम लोग की सारे बॉडी में बोन्स है, फिर भी हम लोग कैसे झुक सकते, कैसे बैठ सकते, अपने हाथ पैर को कैसे मूवमेंट कर सकते? क्योंकि जो हाथ में हम लोग की दो बोन्स रहती है, एक ऊपर में एक नीचे में, ठीक है। अब जो एल्बो होती है हम लोग की, जो कनुई होती है ना, वहाँ पे एक जॉइंट रहती है, जो कि ये जॉइंट हाथ की ऊपर वाला बोन्स और नीचे वाला बोन्स को एक साथ जुड़ा के रहते हैं, जोड़ के रखते हैं। और इसी बोन्स के वजह से, इसी जॉइंट के वजह से हम लोग अपने हाथ को मोड़ भी सकते हैं और फोल्ड भी कर सकते हैं आसानी से। सेम चीज़ होती है पैर में भी। जो पैर होती है हम लोग की, उसमें भी 2 और 3 बोन्स रहती है लंबे लंबे, एक नीचे में रहती है, एक थाई में रहती है। और ये सारे बोन्स एक दूसरे के साथ किससे जुड़े होती है? नी बोन्स, मतलब जॉइंट से। जो कि हम लोग की घुटनी है ना, नी हाटू होती है, उसमें जॉइंट रहती है। तो हम लोग देखोगे, तुम लोग नीचे वाला जो पार्ट है पैर की उसको फोल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन जो घुटनी है वहाँ से हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे 2 बोन्स जॉइंट के साथ जुड़ा रहते हैं, उस जॉइंट पे हम लोग फोल्ड कर सकते हैं अपने मर्जी से, ठीक है। देखो हाथ का तुमने ऊपर वाला पोर्शन, मतलब एल्बो के ऊपर से हम लोग बेंड कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक ही बोन्स होती है और बोन स्टीफ और मजबूत है, उसको हम लोग बेंड नहीं कर पाते। लेकिन जो कनुई होती है, जो एल्बो होती है हम लोग की, वहाँ पे जॉइंट रहती है, इसीलिए हम लोग अपने हाथ को अपने एल्बो से फोल्ड कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? सो नाउ a place where the 2 bones meet is called a joint। जहाँ पे 2 बोन्स एक साथ जुड़ते हैं, যেখানে দুটো হাড় একসাথে জোড়া লাগছে, সেই অংশটাকে বলছে জয়েন্ট। A place where the 2 bones met together, this place is known a joint। Okay, now the various joint allow डिफरेंट मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ऐसे बहुत सारा हम लोग की बॉडी में जगह जगह पे जॉइंट है, और इसी जॉइंट की वजह से हम लोग अपने बॉडी को अपनी मर्जी से मूवमेंट या तो फोल्ड कर पाते। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। दिस इज द सेकेंड सिस्टम इन आवर बॉडी।
muscular system. Bones in our body cannot move on their own. ये हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि बोन्स जो होती है, जो बोन्स वो बहुत ही स्टीफ रहती है, बहुत ही मजबूत रहती है. बोन्स को हम लोग अपने मर्जी से बेंड नहीं कर पाते. लेकिन अगर बोन्स के साथ मसल्स जुड़ा होता है तो हम लोग इस मसल्स की हेल्प से और जॉइंट की हेल्प से बोन्स को मूवमेंट कर पाते हैं. सो मसल्स हेल्प बोन्स टू मूव. टुगेदर बोन्स एंड मसल्स अलाउ अस टू वर्क, रन एंड जंप. तो जब बोन्स और मसल्स एक साथ जुड़ जाते उसके हेल्प से हम लोग अपने मर्जी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं और जंप भी कर सकते हैं. सो ऑल द मसल्स इन आवर बॉडी form the muscular system. Okay, so all the muscles in our body form the muscular system. Now the muscles are fleshy, stretchy band that cover the skeleton system. तो मसल्स जो होती है वो बहुत ही फैला हुआ रहता है. स्ट्रेची मतलब फैला हुआ, और फ्लेसी का मतलब होता है মাংসল, যে মানে খুব থলথলে মাংসের মতো থাকে. দ্যাট কভার, যেটা कि ना ढके रखे, जो कि कवर करके रखते हैं, ढक के रखते हैं स्केलेटल सिस्टम के ऊपर से. मतलब एकदम अंदर पे रहते हैं स्केलेटल सिस्टम और उसके ऊपर से उसको कवर कौन करके रखते हैं? मसल्स. ओके, सम मसल्स आर थिक एंड सम आर थिन. दे आर अटैच टू द बोन्स. और मसल्स बोन्स के साथ भी जुड़ा रहते हैं. मसल्स पुल ऑन द बोन्स एंड मेक देम टू मूव. जो मसल्स होती है वो बोन्स को खींचते हैं और उसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है. ओके, नाउ वी आर डिस्कस. सो नाउ सम ऑफ आवर मसल्स वर्क ऑन देयर ओन. कोई कोई मसल्स होती है जो कि अपने मर्जी से मूवमेंट कर पाते हैं. Our heart and lungs muscles work the time even when we are asleep. हम लोग की जो हार्ट होती है और जो लंग्स होती है उसका जो मसल्स होती है वो एवरी टाइम वर्किंग. क्योंकि जो हार्ट और जो लंग्स होती है वो एक बार हम लोग जब जन्म ले लेते हैं और जब तक हम लोग का डेथ नहीं होता है तब तक वो कंटिन्यूअसली वॉकिंग करते हैं. सो हार्ट और लंग्स वॉकिंग एवरी मोमेंट इन आवर लाइफ. ओके, सो नाउ सो आवर हार्ट और लंग्स मसल्स वर्क ऑल द टाइम इवन व्हेन वी आर asleep. जब हम लोग सोते रहते उस टाइम में भी ये दोनों ऑर्गन्स की जो मसल्स होती है वो काम करते रहते हैं. ओके, नाउ the digestive system. This is also very important system and this is the picture of the digestive system. Just as a car needs fuel to run, our body also needs food for our different activities. जैसे हम लोग के पता है कि without fuel मतलब पेट्रोल और डीजल के बिना जैसे कार नहीं चलते हैं. Without the petrol or diesel the car does not move, does not run. Same way our body also needs food because from the food we get energy in our body and this energy help us to doing the lots of activity in our daily life. जो हम लोग रेगुलर की लाइफ में जो बहुत सारा काम करते हैं जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, लफिंग, फिर डांसिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग. For everything we need some energy and this energy we get from our food. सो इसी फूड को हम लोग की बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए मतलब फूड जो हम लोग खाते हैं जिस फॉर्म में हम लोग फूड खाते हैं वही फॉर्म में क्या फूड हम लोग के अंदर पे रहते हैं? नहीं. हम लोग जो भी खाते, चिकन खाते, फिश खाते, अंडे खाते, वेजिटेबल्स खाते, फ्रूट्स खाते, वो बहुत ही एक सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में रहते हैं. लेकिन उसी फॉर्म में क्या हम लोग की बॉडी के अंदर वो रहती है? नहीं. वो डाइजेस्ट होके वो एकदम लिक्विड मतलब वो ब्लड के साथ मिक्स्ड हो जाता है और ब्लड के साथ मिक्स्ड होने के लिए उसको लिक्विड बनना पड़ेगा. तो कोई भी खाने से लिक्विड फॉर्म जो होती है उसका जो चेंजेस होती है वो डिफरेंट स्टेजेस में होती है और यही प्रोसेस कंप्लीट होती है ये डाइजेशन प्रोसेस में जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे. सो आवर बॉडी, ऑल ऑफ यू अंडरलाइन दिस सेंटेंस,
our body breaks down the food we eat into the simpler substances in a process called digestion. So digestion किसको कहते हैं? By which process our foods break down in the simple substances. जिस प्रोसेस में हम लोग की खाना ब्रेक डाउन होके तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल में चेंजेस हो रहा है, उसको कहते हैं डाइजेशन. और कौन सा बॉडी पार्ट्स उसमें हेल्प करती है? यस, द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम और एनस आर मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये सारे बॉडी ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है. अगर कोई भी एक ऑर्गन इनमें से काम नहीं करते हैं तो डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. ओके, नाउ हाउ द डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट इन आवर बॉडी, लेट्स सी. इन द माउथ द टीथ chewy and grind the food into the smaller pieces. तो डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है हम लोग की बॉडी में? माउथ से. So digestion process is start into our mouth. When we eat something, our teeth chew it and grind the food into the smaller pieces. जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो हम लोग की जो टीथ होती है उसके हेल्प से खाना छोटे छोटे पीसेस में तोड़ जाते हैं, right? And the saliva mixes with the food to form a small soft balls. और हम लोग की बॉडी मुंह के अंदर हमेशा सलाइवा होती है, लाला रस. सबको तुम लोग नोटिस करोगे कि इनसाइड आवर माउथ देयर ऑल टाइम द माउथ इज सम वेट, थोड़ा सा भिगा हुआ रहते हैं ड्यू टू द सलाइवा. क्योंकि हम लोग की मुंह के अंदर एक ग्लैंड रहती है जिसको कहती है सलाइवरी ग्लैंड. And from the salivary gland, the saliva it secretes all time, and when it mixes with the food particles, जब ये लाला रस saliva खाने के साथ मिक्स होती है तो खाने को ये सॉफ्ट बना देते हैं. Now this food is swallowed down through a tube called gullet or food pipe. फिर जब खाना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो उसको हम लोग स्वॉलोइंग कर लेते हैं, मतलब गिल लेते हैं. गिलने के बाद वो गले के अंदर हम लोग की एक नल जैसा ट्यूब रहते हैं, उसको कहते हैं फूड पाइप. जो कि ये वाला पाइप देखो, इसको कहते हैं फूड पाइप. तो कि हम लोग की गले से एकदम नीचे स्टमक तक जुड़ा रहते हैं. इस पाइप से वो खाना नीचे में आ जाता है, ठीक है. इसको कहते हैं फूड पाइप. इनटू द स्टमक, इनसाइड द स्टमक द फूड इज क्रस्ट फर्दर. फिर ये स्टमक के अंदर ये वाला पार्ट को कहते हैं स्टमक, ये वाला पार्ट को कहते हैं स्टमक. फिर ये स्टमक पे आके वो खाना 3-4 घंटा तक वहाँ पे रहते हैं और फिर से वो और भी ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं स्टमक पे. उस जूसेस के साथ वो फिर से मिक्सड अप होती है, क्रस्ट होती है, मतलब क्रस्ट का मतलब मिक्सड अप होना. ओके, एंड आफ्टर 2 or 4 hours इट लुक्स लाइक अ थिक सूप. फिर खाना से पहले से सॉफ्ट था, फिर उस सॉफ्ट खाने के साथ जब फिर से डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं, कौन से जूसेस मिलते हैं? बाइल जूस जो कि लीवर से निकालती है और पैनक्रियास से निकालती है पैनक्रियाटिक जूस. वो तुम लोग बाद में जब अपर क्लास में जाओगे तो वो और भी डिटेल्स में तुम लोग पढ़ोगे. तो स्टमक पे खाना जाके 2 से 4 घंटे तक खाना वहीं पे रहते हैं. 2-4 घंटा ओखाने থাকে, where the food again mixed with some digestive juices, जहाँ पे खाना और भी डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स्ड होता है और फिर वो एकदम थिक सूप के तरह बन जाता है. नाउ दिस थिक सूप गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर ये सूप चले जाते हैं कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन पे. देखो ये जो छोटे छोटे नलकी जैसे रहती है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. मतलब स्टमक से खाना कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन पे. और मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड टू द फूड एंड डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हियर. सो फिर वो स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिर से उसके साथ और भी डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं तो खाना एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है. तो यहीं पे डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है. सो इन विच बॉडी पार्ट्स आवर डाइजेशन प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड? Yes, in the
small intestine, our digestion process is completed. Now, the digested food is absorbed by the blood. अब blood उस digest प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, डाइजेस्टेड जो फूड होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं ब्लड, एंड ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. फिर ब्लड उस डाइजेस्टेड फूड को लेके सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देते हैं. नाउ द अनवांटेड बाइट्स ऑफ फूड, जो कि अनवांटेड मतलब हम लोग की बॉडी में जो डाइजेस्ट नहीं होती है, जो हम लोग की बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं. अनवांटेड मतलब जिसका कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, যেটা আমাদের শরীরের প্রয়োজন নয়, এরকম কিছু আনওয়ান্টেড খাবার আমাদের শরীরে স্মল ইন্টেস্টাইন থেকে চলে যাচ্ছে লার্জ ইন্টেস্টাইনে. দে গোজ টু দ্য লার্জ ইন্টেস্টাইন অ্যান্ড ফ্রম হিয়ার ইট পাসড আউট অফ দ্য বডি, এবং এখান থেকে সেটা আমাদের শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে. फिर वो हम लोग की शरीर से निकल जाते हैं, किसको, इसका हम लोग के शरीर में कोई ज़रूरी नहीं है. सो दिस इज़ द डाइजेशन प्रोसेस. So in this video we are learn about some system in our body, that is the skeletal system, then bones, muscular system, and last the digestive system. And I hope this video may help us to understand this chapter in the properly. Okay, so students, read out this chapter proper way and learn many and many times. Okay, thank you students. Have a good day. Take care of yourself. Bye bye.